So divergence is what? The definition of divergence is. So I want to explain the Guinness theorem. So in Guinness theorem, as I told you, there are two forms of Guinness theorem. One is divergence form, one is curve form. So first thing is what is divergence? So divergence, the divergence इसको flux density भी बोलते हैं, flux density of a vector field. F is equal to mi plus nj. Suppose vector field है in the plane at the point x comma y. It is given by divergence of f. In short, div divergence लिख सकता हूँ जैसे gradient को gradient लिखते del m over del x plus del n over del y. Okay, this is divergence. So it is not vector quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity at a point. If you are finding at a point. Okay. Gradient क्या होता था? I del m over del x plus j del n over del I del f over del x plus j del f over del y था. यहाँ पर क्या करेंगे? I will find the partial derivative of the component of I and j. So it measures different things. Like for a gas is, a gas is compressible. So if divergence of f at some point x naught y naught is greater than 0, then we say that gas is expanding at the point. This implies that gas is expanding. At the point x naught y naught. If divergence of f expanding means if you have gas in somewhere and at a point if divergence is strictly positive, तो यहाँ पर गैस क्या हो रही होगी? एक्सपेंड हो रही होगी इस पे, है ना, इस तरीके से at this particular point. If divergence of x at a point less than 0, this implies that gas is compressing. Gas is compressing at a point x naught y naught. Compressive means if you have a gas in like this, so at a particular point if it is negative, so यहाँ पर gas क्या हो रही? Compress हो रही होगी at this point. So you can find a compressibility through this. If divergence f is 0, so you say that it is incompressible. Okay. So if it is, for example, if fxy is equal to cxi plus cyj, it is called uniform expansion. इसके लिए अगर आप divergence निकालेंगे, suppose for this, so here if it is a vector field f, here divergence of f will be what? So m is cx, n is cy, है ना? तो del m over del x कितना आएगा? del m over del x c del m over del x plus del n over del y. So how much it is coming? C plus c, 2c आ रहा है. So it means what? 2c. So if c greater than 0, then we say that expansion, gas is expanding. If c less than 0, then it is compression, uniform compression. इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म. सर ये वाला कंसेप्ट खाली गैस पे लगता है, किसी और पे भी लगा सकते हैं? ये और चीजों पे भी ला सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज पे भी मेजर कर सकता है. अगर यहाँ पर तो आपके पास वेलोसिटी फील्ड है ये, then it will give you the compressibility of a gas. तो डिपेंड करेगा क्या है. तो एग्जांपल है रोटेशन, जैसे आगे प्रॉब्लम में फ्लूइड डायनामिक्स में अगर वेलोसिटी फील्ड है
तो वहां पर हमारे पास लिक्विड के लिए बेसिकली ये कंप्रेसिबिलिटी चेक करता है। अगर आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स है तो वहां पर अगर ये वेलोसिटी फील्ड है तो वहां भी अगर डाइवर्जेंस 0 है तो हम कहेंगे लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इट मेजर्स बेसिकली द कंप्रेसिबिलिटी। ओके सर। हाँ, तो लिक्विड अगर आपका इनकम्प्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है, बाय दिस डाइवर्जेंस वी कैन चेक इट। ठीक है, तो दिस ओके, हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट इज curl, kth component of the curl. If you have some f, चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। The circular density of a vector field f is equal to mi plus nj। क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम मैंने बताया, ग्रीन्स थ्योरम आपकी कहाँ पर है, प्लेन पर है। वी हैव ग्रीन्स थ्योरम ऑन द प्लेन, इसलिए मैं फील्ड mi plus nj प्लेन पर ले रहा हूँ। एट द पॉइंट x, y is the scalar expansion expression सर्कुलर डेंसिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस था ये थी फ्लक्स डेंसिटी। तो सर्कुलर डेंसिटी इज गिवन बाय इज द एक्सप्रेशन del n over del x minus del m over del y। this is this expression, it is called, this is called, this expression is called, is also called the kth component, the k component of the curl, and denoted by curl f dot k। k is the unit vector। ये देखो कैसा है, देखिए अगर इफ यू हैव सम f वेक्टर फील्ड mi plus nj plus pk, i j k r वेक्टर, तो इसका अगर मैं डेल क्या होगा, डेल इज गिवन बाय i del del x plus j del del y plus k del del z। इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ डेल ऑफ f। तो कर्ल ऑफ f जो होता है, कर्ल f इज गिवन बाय डेल क्रॉस f, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल f कहलाता है। कर्ल f विल बी व्हाट, i j k क्रॉस प्रोडक्ट करा हमने ना, डेल डेल x डेल डेल y that or m n p, this is called curl of f। del cross f, if you have f is a field है ना, velocity field या फोर vector field, and del is the gradient, then curl f is cross product of del cross f, del f। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपके पास i j k, kth कंपोनेंट कितना होगा आपके पास, इसका अगर हम कर्ल f का डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसको व्हेन यू विल ओपन ना, क्या आएगा, सर डेल एन i ओवर डेल टाइम्स एक्स, i टाइम्स आई टाइम del डेल पी और डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल जेड माइनस और माइनस जे टाइम्स डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन या डेल, ये हाइट क्या ना, डेल पी ओवर डेल एक्स डेल डेल पी ओवर डेल एक्स और माइनस, सर माइनस डेल एम ओवर डेल जेड और प्लस के प्लस टाइम, के कैप के टाइम डेल एन ओवर डेल एक्स अरे तुम गाने में माइनस डेल एम डेल ओवर एम डेल ओवर वाई डेल। ये है, ठीक है, इसका माइक। सो अब अगर आप क्या डॉट, सो नाउ इफ आई विल टेक
कर्ल एफ डॉट के, है ना, आई जे के, तो क्या आएगा ये आई डॉट आई के जीरो जे डॉट के क्या आएगा, ये तो आएगा फैक्टर इसका del n over del x minus del m over del kth कंपोनेंट, है ना, यही लिखा है मैंने। दिस इज नोटेड बाय कर्ल एफ डॉट के। ये कर्ल एफ होता है। कर्ल एफ क्या देता है आपको? कर्ल एफ बेसिकली इफ यू हैव सपोज अ बोट, जैसे पैडल बोट है, अगर पैडल बोट में इफ यू इज दिस इज अ पैडल बोट, सपोज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, एक पैडल बोट ले लें लाइक दिस, इस पे वो बना हुआ है ये इस तरीके से, एंड हेयर दिस इज, ये परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस, ओके, ये के पैरेलल है अगर आपके पास, सो एंड दिस इज अ पॉइंट x नॉट y नॉट, ओके। तो इफ वी सी दैट if the flow of an fluid is incompressible है over a plane, then kth component of the curl measures the rate of the fluid's rotation at a point. इसी पॉइंट पे rate of the fluid rotation, कितना rotate होगा fluid, that is given by this kth component of the curl, है ना, ओके। जैसे पैडल बोट है, अगर आप पैडल बोट चला रहे हैं और उसको पैडल बोट कैसे, ये प्लेन है और ये एक्सिस की जो है वो पैरेलल टू जेड एक्सिस है, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस, तो दिस कर्ल कंपोनेंट विल गिव यू द फ्लूइड रोटेशन एट अ पॉइंट, रेट ऑफ फ्लूइड रोटेशन, रेट ऑफ फ्लूइड रोटेशन एट अ पॉइंट, ये देता है। तो इफ ये आपके पास इट इज क्लॉक को काउंटर क्लॉक वाइज है तो काउंट कर्ल एफ डॉट के ग्रेटर देन 0, और अगर क्लॉक वाइज है तो कर्ल एफ डॉट के लेस देन 0 होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या yes मेजर sir. करेगा ये? इट विल, सो इफ वाटर इज मूविंग अबाउट अ रीजन, अगर वाटर इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन इन अ थिन लेयर, तो kth component of curl this, it gives a at a point p naught some x naught y naught, it gives a way to measure how fast and in what direction a small paddle wheel spins if it is put into the water, ठीक है, ये देता है। अगर पैडल बोट से आ रहे हैं तो हाउ फास्ट इन व्हाट डायरेक्शन अ स्मॉल पैडल व्हील स्पिन्स, किधर मूव करेगी और कितना फास्ट, दिस मेजर्स कर्ल एफ डॉट के। So two things are there, one is curl f and second is divergence f। तो ये दो कंसेप्ट का यूज करना है मुझे गिरीज थ्योरम में। सो नाउ कम्स द गिरीज थ्योरम। सो देयर आर टू फॉर्म्स, इट इज थ्योरम 4 ऑन पेज 936। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रूफ तो यू कैन सी द प्रूफ, प्रूफ इसमें गिवन है। पहले प्रूफ इसका हुआ करता था बहुत टाइम पहले, व्हेन दिस बुक वाज नॉट देयर, पहले वीडर बुक चला करती थी आपके, एक फॉर्म होता था वीडर, तब इसका प्रूफ हुआ करता था, आई थिंक 7-8 years बैक। ग्रीन्स थ्योरम, so there are two forms of Green's theorem, one is called flux divergence, flux divergence और नॉर्मल फॉर्म। ये आपको पता है कि इन लाइन इंटीग्रल में you have read two forms, है ना, टू फॉर्म्स आपने देखी थी, याद है? लाइन इंटीग्रल एक तो था एफ डॉट टी और एक था Yes, एफ sir. डॉट एन, टू थी, है ना, एफ डॉट टी एफ डॉट एन। तो एफ डॉट एन वाली जो है इट इज नॉर्मल फॉर्म और उसको हम फ्लक्स डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, कीप इट माइंड, बिकॉज इन लाइन इंटीग्रल यू हैव स्टडीड टू, एफ डॉट एन पढ़ा था आपने, एक एफ डॉट एन डी एस जिसे हमने आउटवर्ड फ्लक्स कहते थे, और एक था एफ डॉट टी डी एस, इसे क्या कहते थे? सर्कुलेशन। टू थिंग्स you have done। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है। तो पहली नॉर्मल फॉर्म आपकी है एफ डॉट एन फॉर्मूला के लिए, नेम से क्लियर है, नॉर्मल फॉर्म करना एफ डॉट एन।
So what are some conditions are there? What? Let C be a piecewise. वालेकुम सलाम. क्लास में क्यों सलाम कर रहा हूँ बीच में भाई? Piecewise smooth. क्लास के बाद बात करिएगा. Simple closed curve. ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन. सी बी आर पीस कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट. ठीक, जब भी वाया होगा ये ग्रीन्स थ्योरम के बारे में जरूर पूछा जाता है. क्वेश्चंस इसके आते हैं हमेशा किसी भी टेस्ट वगैरह में. इसके ऊपर जरूर प्रॉब्लम मिलेगी आपको. सो इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सी बी आर पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना. यू नो व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व? अ कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. पढ़ चुके हैं आप ये. enclosing a region R. किसी रीजन आर को एनक्लोज करता है ना. इस तरीके का है. क्लोज्ड है whose final point and end point are same, does not intersect itself. किसी रीजन आर को एनक्लोज कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन इज लेट f is equal to mi plus nj be a vector field. Be a vector field with m and n having continuous partial first order partial derivative. First partial derivatives in an open region containing R. In an open region containing R. Okay. Second condition क्या? कि ये आपके पास जो mi plus nj, that means the component of I and j, they should be continuous. First partial derivative. Then the outward flux of f across C equals the double integral of divergence f over the region enclosed by C. That means मतलब क्या कहना है? Then the outward flux. The outward flux क्या था? You know, f dot and ts है ना. ये आपका outward flux था जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पीछे. It is outward flux. It will be equal to what? तो f dot and ds अगर याद हो आपको, अगर m के टर्म में हमने लिखा था तो it was m dy minus n dx है ना. ये फॉर्मूला था आपके पास ओवर c. यहाँ पे एक साइन होता है. आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो n आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना. इसकी वैल्यू ये आ जाती है m dy minus n dx. So they are saying this will be equal to how much? The integral over r. और क्या होगा? m dy n dx है तो del m over del x plus del n over del y dx dy. Okay. So this is called divergence integral. So this is the Guinness theorem and this was outward flux. क्या कह रहा है भाई? What it says that outward flux can be calculated by this double integral problem. So it is the relation between line integral and double integral. ये Guinness theorem है आपकी. बताइए बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक. So outward flux will equal to this double integral. So it is a relation in line integral, single integral to double integral. If you want to find outward flux, तो एक method तो हमने पीछे किया. One method is what? By the Guinness theorem, you can find the outward flux, and you will see in some problems that it will easy your calculation also. तो अगर आपको outward flux निकालना है तो what you have to do? You just take the region and इसको integrate कर दो
बाय टेकिंग दिस रेशियो, डेल एम ओवर डेल एम डी वाई माइनस एन डी एक्स है, तो डेल एम ओवर डेल वाई प्लस डेल एन ओवर डेल एक्स, ये नॉर्मल फॉर्म है। इसी की थ्योरम 5 है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन कर्ल और डाइवर्जेंस, ग्रीन्स थ्योरम में ही। देयर आर टू फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड सर्कुलेशन कर्ल और टेंजेंशियल फॉर्म, सर्कुलेशन कर्ल। तो रेस्ट्रिक्शन सब सेम है, देखो सारी रेस्ट्रिक्शन सेम, कंडीशन सारी वही सेम है जो पीछे दी गई थी, सेम कंडीशंस एज थ्योरम 4, यानी कि यहाँ तक कंडीशन सेम है कंटेनिंग आर। देन क्या आगे लिखेंगे, देन द काउंटर क्लॉकवाइज, then the counterclockwise circulation of F across around C this equals the double integral of curl F dot K over R। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस ये क्या था, डेल एम ओवर डेल एक्स, ये डाइवर्जेंस ही तो है आपका जो मैंने डिफाइन किया था। तो ये डाइवर्जेंस के इक्वल है इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, और हेयर दे आर सेइंग दैट मींस द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन को हम किसके लिखते हैं, एफ डॉट टी। आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स। तो सर्कुलेशन जो है वो इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एफ, तो एफ डॉट टी है। और जो फ्लक्स था आपका नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें, इसे नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं क्योंकि फ्लक्स इज द normal component of the vector velocity field F. So F dot T ds, F dot T ds को अगर आप m और n के टर्म में लिखेंगे तो it will be m dx plus n dy, है ना, ये आता था निकल के, चेक कर सकते से over the curve C. So this will be equal to double integral R कर्ल F डॉट के क्या आया था, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई dx dy. Okay, so this is your tangential form. So tangential form will equal to curl F, ये क्या है, it is also called curl integral, and this is your counterclockwise circulation ना, counterclockwise है, ये सिंपल इस पे ऐसे बना हुआ है ये एरो counterclockwise. So this is your two formulas. So tangential form you can write by this, and normal form you can write by this formula. This is your divergence and this is your curl, है ना, ये कर्ल था अभी हमने निकाला था, ये कर्ल आया था। Okay, in fact these two forms are equivalent, ये two forms जो हैं equivalent है, the two forms are equivalent. अगर मैं इसको नंबर दे दूं, सपोज इट इज योर 1, इट इज 2, तो अगर हम थ्योरम 1 जो है यानी कि इक्वेशन 1, अप्लाइंग इक्वेशन 1 टू द फील्ड सब G इज इक्वल टू Ni माइनस Mj, अगर Ni माइनस Mj ले लें हम, दिस गिव्स इक्वेशन 2 ना, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, F Mi प्लस Nj,
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हमारे पास था, हेयर इक्वेशन 1 को आई विल अप्लाई g इज इक्वल टू ni माइनस mj। तो ni माइनस mj जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्मूला, सेम चेक कर सकते हैं इसे, ना ये एम डी वाई माइनस एन डी एक्स था। तो अगर एफ आपके पास एन आई माइनस एम जी होगा तो क्या होगा, एन डी वाई प्लस एम डी एक्स। तो सेम फॉर्मूला ये निकल कर जाएगा थ्री का, इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड अप्लाइंग, इसे G1 कर दे रहा हूं, एंड अप्लाइंग इक्वेशन 4 इक्वेशन 2 टू G2 इज इक्वल टू G2 अगर हम ले लें माइनस एन आई प्लस एम जे, it will give you equation 1. This gives equation 1. Okay, so they are equivalent है ये। बस ये अगर g कंपोनेंट चेंज कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं, एग्जाम्पल 3, पेज 937। वेरीफाई बोथ फॉर्म, यहाँ वेरीफाई करना, वेरीफाई बोथ फॉर्म्स ऑफ Guinness theorem for the vector field fxy is equal to x minus yi plus xj, एक वेक्टर फील्ड के भी ने, ठीक, एंड द रीजन आर बाउंडेड by the unit circle C। यूनिट सर्कल इक्वेशन क्या होती है भाई, RT is equal to cos t I plus sin t j। तो भाई स्टूडेंट्स आर देयर हो या नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन यू नो, cos ti plus sin t j है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू वेरीफाई, you will find that left hand side this by the old formula line integral and by this double integral, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 1 में भी 2 में भी, है ना। इफ दे आर सेम देन इट इज वेरीफाइड। वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई मीन्स क्या होता है, योर लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले अगर मुझे एफ डॉट टी और एफ डॉट एन निकालना है तो पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो फर्स्ट आई विल फाइंड एफ डॉट एन डी एस। तो क्या करते थे इसको, अगर हम टी के टर्म्स में, है ना, लाइन इंटीग्रल कैसे करा है, बिकॉज आई वांट लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी, so the whole thing I will write in terms of t. So what I can write, you know this thing, we have done problems. क्या करना है, कर्व को सेटिस्फाई कराएंगे in f. So here you can see, so here f is how much, हमें f of rt लेना, x minus y, तो cos t minus sin t, है ना। So dx will be how much, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिखना है हमें, हमें ये सेटिस्फाई करना है। देखो एम डी वाई माइनस डी एक्स, तो इसको पहले मैं इस टर्म में लिखूंगा, इस सबको टी में लिखूंगा, एम डी वाई माइनस एम डी एक्स। एम इज कॉस टी माइनस, मैंने कर्व से सेटिस्फाई कराते हैं, है ना। आई एम टेकिंग एफ ऑफ आर टी, सो डी एक्स विल बी हाउ मच, एम कितना हो गया एक्स माइनस वाई, सो डी एक्स इज, एक्स कितना है यहाँ पर देखो, एक्स इज कॉस टी, है ना, ये एक्स होता है, ये वाई, y is sin t. So m is x minus y, cos t minus sin t. So dx is how much, minus sin t dt. Okay. N is how much, n is x, x is cos t, and dy is how much, d of sin t is cos t dt. Okay. So और your del m over del x भी निकाल लीजिए। del m over del x is how much, del m over del x is, तो m is कितना है, x minus y, del m over del x निकालना है राइट हैंड साइड के लिए,
तो del m over del x is 1 and del m over del y is -1, ये m है, ये n है, and del n over del x is equal to 1, del n over del y is equal to 0. So firstly I am taking left hand side of 1. लेफ्ट हैंड साइड 1 क्या क्या था आपके पास, m dy माइनस n dx है ना, ये लिया पहले 1 का लेफ्ट हैंड साइड, लाइन इंटीग्रल, सिंगल लाइन इंटीग्रल. सो इट विल बी हाउ मच, m dx m dy माइनस n dx. तो इन सबको हमने क्या करना है, t में रिप्लेस करा, तो t विल बी 0 to 2 पाई. तो m dy कितना आता है, m इज cos t माइनस sin t, dy is cos t dt. Okay, and minus n dx, so minus n is cos t, and dx is minus sin t dt. Okay, कितना आ रहा है अभी देखो जरा, cos स्क्वायर t माइनस साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी. तो ये टर्म तो पूरा प्लस प्लस माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया. तो गॉट 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी. हाउ मच इट इज कमिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी. ठीक है, कॉस स्क्वायर टी क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2t बाई 2. सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 and पाई. नाउ आई विल टेक राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या था, डबल इंटीग्रल आर del m over del x plus del n over del y dx dy. ओके, तो del m over डबल इंटीग्रल del m over del x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 and del n over del y 0. So you got 1 plus 0 dx dy. Okay, so double integral r dx dy. अब डबल इंटीग्रल r dx dy क्या है, ये fx y जब 1 हो जाता है तो ये क्या देता है, it gives you area inside the region. रीजन क्या था आपका यहाँ पर, रीजन प्रॉब्लम में गिवन है, इट इज यूनिट सर्किल. तो दिस गिव एरिया इनसाइड द यूनिट सर्किल, है ना. तो fxy अगर 1 तो दिस गिव यू एरिया डबल इंटीग्रल. तो एरिया इनसाइड द यूनिट सर्किल कितना है, पाई आर स्क्वायर, दैट मींस पाई. सो योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, वेरीफाई हुआ, अभी 1 इक्वेशन हुई है, ये पाई आ गया, ये पाई था. नाउ आई विल टेक कर्ल फॉर्म. तो अभी आपने कौन सी करी थी, डाइवर्जेंस फॉर्म. नाउ कर्ल फॉर्म या टेंजेंशियल फॉर्म. ठीक है, मैं दोनों फॉर्म वेरीफाई करनी है. टेंजेंशियल फॉर्म में क्या था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्वेश्चन 2, m dx plus n dy. So m dx plus n dy, it is your left hand side of equation 2, m dx plus n dy. तो t में लिखूंगा मैं इसे सबको, I will change to t. तो m dx, m is cos t minus sin t and minus sin t dt plus cos t and dy was cos t dt, है ना. ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ निकाल दी, पहले इसे पुट कर दिया. इसको आप सॉल्व करेंगे, वही देखिए माइनस cos t sin t आएगा प्लस cos स्क्वायर t. तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी गिविंग यू cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर t नहीं माइनस माइनस प्लस दिस sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t is 1. So you will be getting 1 minus sin t cos t dt and 0 to 2 pi. ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इट इज कमिंग 2 pi. ये 2 pi आ रही है वैल्यू. नाउ आई विल फाइंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड ऑफ 2, ये क्या था, डबल इंटीग्रल r del n over del x माइनस del m over del y dx dy, है ना. ये थी राइट हैंड साइड आपकी थ्योरम. ये यहाँ माइनस था,
तो इसकी वैल्यू आप del n over del x you have calculated. It was coming 1 minus del m over del y is also minus 1 dx dy है ना, ये आ रही थी वैल्यू -1 and that is 1. So it is how much? Double integral r twice you can take outside dx dy. It is again area 2. This is what? Area enclosed by the unit circle. So how much it is? Pi. So 2 pi. It is 2 pi. Same है ना? So RHS is equal to RHS. So in this way you can verify the theorem. समझ में आई भाई?